Hello, listening friends, and welcome to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में आपका स्वागत है। If you are joining us for the first time in this series of messages, यदि आप इस संदेश श्रृंखला में पहली बार हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, we have been studying the 15 secrets of positive living from 2 Corinthians. तो हम कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में से सकारात्मक जीवन के 15 रहस्यों पर गौर करते आ रहे हैं। And so far, we have seen 6 of those 15 secrets. और अब तक हम इन 15 रहस्यों में से 6 को देख चुके हैं। And today I'll share with you the 7th secret for positive living. और आज मैं आपके साथ सकारात्मक जीवन जीने का 7वां रहस्य बांटूंगा। But I want to begin by giving you an illustration. परंतु मैं आपको एक उदाहरण देते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं। People around the world are aware of the danger of bird flu. दुनिया भर में लोग बर्ड फ्लू के खतरे के बारे में जानते हैं। When the flu was first discovered, some experts warned that the bird flu could kill as many as 1 billion people worldwide. जब पहली बार इसका पता चला तो कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि बर्ड फ्लू दुनिया भर में 10 खरब लोगों तक को मार सकता है। So far, there is no natural immune for that possible plague. अब तक इस संभावित महामारी का कोई प्राकृतिक तोड़ नहीं मिल पाया है। And there's only one medicine that can treat it. और केवल एक ही दवाई इसका इलाज कर सकती है। And this one medicine is only manufactured by only one pharmaceutical company in the world. और इस दवाई का निर्माण दुनिया में दवाइयों की केवल एक ही कंपनी के द्वारा किया जाता है। And that company cannot keep up with the unbelievable demand for stockpiling that medicine. और वो कंपनी इस दवाई की मांग को पूरा नहीं कर पा रही। When I first heard of this possible threat, जब मैंने पहली बार इस संभावित खतरे के बारे में सुना, I could not help but think of another plague, तो मैं एक और महामारी के विषय में सोचने से खुद को ना रोक पाया। a far more deadly plague, इससे कहीं ज्यादा घातक महामारी, a plague that is not only possible but is already in existence, एक ऐसी महामारी जिसकी न केवल संभावना है परंतु जो पहले से ही मौजूद है, a plague that is not only a threat to just the body but the soul as well, एक ऐसी महामारी जो न केवल देह परंतु आत्मा के लिए भी एक खतरा है, a plague that infects every newborn baby, ऐसी महामारी जो हर नवजात शिशु को दूषित करती है। the plague that I'm talking about is what the Bible calls the original sin. ये महामारी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बाइबल इसे वास्तविक पाप कहती है। We are all born with it. हम सब इसके साथ ही पैदा होते हैं। The symptoms of this plague includes the following: इस बीमारी के लक्षणों में ये लक्षण शामिल हैं। wanting your own way and not God's way all the time, हर समय अपनी मर्जी की चाह रखना, न कि परमेश्वर की मर्जी की। enmity and resentment toward God for wanting us to obey Him, परमेश्वर के विरुद्ध इस बात का कारण शत्रुता और विरोध रखना क्योंकि वो चाहता है कि हम उसका आज्ञा पालन करें। resistance to the fact that He provided only one medicine, one cure for that original sin plague. इस तथ्य के सामने अड़ जाना कि उसने उस वास्तविक पाप की महामारी के लिए केवल एक ही दवाई, एक ही उपाय का प्रबंध किया है। A severe frustration when we refuse to accept that one and only cure. तीव्र निराशा जब हम उस एकमात्र औषधि को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। Refusal to accept the cure can lead to eternity in torment and pain. उस इलाज को स्वीकार करने से इनकार हमें अनंतकाल के कलेश और पीड़ा में पहुंचा सकता है। But the good news is this: परंतु खुशखबरी ये है, those who receive the medicine are not only cured, they experience deliverance, joy, and a desire to recommend this cure to everybody else. वो जो इस दवाई को स्वीकार करते हैं न केवल वो चंगाई को पाते हैं बल्कि वो छुटकारे, आनंद और एक इच्छा का अनुभव करते हैं कि वो दूसरों को भी इस औषधि के बारे में बताएं। That cure is available to everyone, everywhere, who will avail themselves to the medicine. ये औषधि हर जगह हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो खुद को इस औषधि के लिए उपलब्ध कराते हैं। What is that medicine? ये दवाई क्या है? Let me tell you about it. मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। It produces reconciliation with God, ये परमेश्वर के साथ मेल को पैदा करती है, relief from guilt, दोष की भावना से आराम देती है and assures us of a bright eternal future. और हमें एक प्रकाशित अनंत भविष्य का निश्चय देती है। It cures not only the disease but the consequences of the disease. ये न केवल बीमारी का इलाज करती है परंतु बीमारी के परिणामों का भी इलाज करती है। And it provides a permanent immunity against the disease. और ये बीमारी के विरुद्ध एक स्थायी तोड़ का भी प्रबंध करती है।
It is not merely the recovering from the disease, but it is the total transformation from that disease. इसमें न केवल बीमारी से स्वास्थ्य लाभ होता है, परंतु उस बीमारी से छूटकर पूर्ण रूपांतरण भी हो जाता है। It's a transformation from death to life. ये मृत्यु से जीवन में रूपांतरण है। And all of this became possible because somebody paid the price for the medicine. और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि किसी ने इस दवाई की कीमत चुकाई। My listening friend, listen carefully. मेरे श्रोता मित्र ध्यानपूर्वक सुने। There can be no reconciliation without a price. कीमत चुकाए बिना कोई मेल नहीं हो सकता। And our God paid the price for us to be reconciled with Him. और हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत चुकाई कि हमारे मिलाप उसके साथ हो जाएं। Our reconciliation with Him required the death of His only Son. उसके साथ हमारे मेल के लिए उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु की जरूरत थी। But the Son willingly put His life down for our sake. परंतु पुत्र ने हमारे लिए स्वेच्छा से अपनी जान दे दी। For anyone who is reconciled with God, प्रत्येक जिसका मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है, for anyone who has received the only cure from God, प्रत्येक जिसने परमेश्वर से उस एकमात्र निवारण को प्राप्त कर लिया है, they are given another very important privilege. उन्हें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष अधिकार दिया जाता है। They are called ambassadors. उन्हें राजदूत पुकारा जाता है। Ambassadors are an instrument of reconciliation. राजदूत मेल के साधन होते हैं। The ambassadors of Christ point people to the only way that they can be reconciled to God. मसीह के राजदूत लोगों को उस एकमात्र मार्ग की ओर संकेत करते हैं जहां उनका मेल परमेश्वर से हो सकता है। And that is the seventh secret for positive living. और सकारात्मक जीवन जीने का ये 7वां रहस्य है। To be ambassadors of reconciliation. मेल के राजदूत बनना। In the ancient days, प्राचीन दिनों में the greatest honor that a king could give one of his subjects was to appoint that person to be his ambassador to another country. जो सबसे महान आदर एक राजा किसी व्यक्ति को दे सकता था वो ये था कि वो उसे किसी दूसरे देश में अपना राजदूत बनाकर नियुक्त करे। In the ancient days, the title of ambassador was much higher than it is today. प्राचीन काल में राजदूत की पदवी आज के समय से कहीं अधिक ऊंची मानी जाती थी। Back then, when the ambassador spoke, it was understood that the king had spoken. उस काल में जब राजदूत कुछ कहता था तो समझा जाता था कि राजा ने ये कहा है। The ambassador did not act on his own, राजदूत अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता था, but on behalf of his king. परंतु वो सब कुछ राजा की तरफ से करता था। The ambassador did not represent himself, but his king. राजदूत अपना नहीं परंतु राजा का प्रतिनिधित्व करता था। The ambassador lived as a foreigner in a foreign land, एक राजदूत विदेशी धरती पर एक विदेशी के समान रहता था, because all of his authority came from his king in his home country. क्योंकि उसको सारा अधिकार उसके मूल देश के राजा की तरफ से दिया जाता था। And this is how it worked. और ये इस प्रकार से होता था। The more powerful the king, the greater the responsibility of the ambassador. राजा जितना शक्तिशाली होता था, राजदूत की जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती थी। And so, my listening friend, I want you to listen very carefully. और इसलिए मेरे श्रोता मित्र, मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। One of our colossal failures as believers in the 21st century is this. विश्वासियों के रूप में इस 21वीं सदी में हमारी एक सबसे बड़ी असफलता ये है That we have often failed to realize that we are ambassadors of the King of Kings. कि हम अक्सर ये समझने में असफल रहे हैं कि हम राजाओं के राजा के राजदूत हैं। We often fail to comprehend the power of our King, हम अक्सर अपने राजा की शक्ति को समझने में असफल हो जाते हैं, the glory of our King, हमारे राजा की महिमा को समझने में, the authority of our King, हमारे राजा के अधिकार को समझने में, the message of our King. हमारे राजा के संदेश को समझने में। He not only made us ambassadors, उसने न केवल हमें राजदूत बनाया, but he authorized us to announce to the world the message of his cure of that original sin plague. परंतु उसने हमें ये अधिकार भी दिया कि हम इस संसार को उस वास्तविक पाप की महामारी के इलाज के संदेश की घोषणा भी करें। And that is how the apostle Paul viewed himself. और प्रेरित पौलुस खुद को इसी रूप में देखता था। He lived for the purpose of telling the good news to those who have never heard about the cure. वो उनको उस इलाज की खुशखबरी सुनाने के उद्देश्य को लेकर जिया जिन्होंने कभी इसके बारे में सुना नहीं था।
He did not allow his enemies to slow him down from the high calling of being an ambassador of the King of Kings. उसने अपने शत्रुओं को अनुमति नहीं दी कि वो उसे राजाओं के राजा के राजदूत होने की ऊंची बुलाहट में धीमा कर सके. He would not allow his critics to stop him from experiencing the power of positive living. उसने अपने आलोचकों को अनुमति नहीं दी कि वो उसे सकारात्मक जीवन जीने की शक्ति का अनुभव करने से रोक सके. There were two things that lifted Paul up in the midst of horrendous and vicious attack. दो ऐसी बातें थी जिन्होंने पौलुस को भीषण और दुष्टतापूर्ण प्रहारों के मध्य में भी प्रोत्साहित रखा. First, पहली, that Jesus, who is perfect, sinless Son of God, died for him to reconcile him with God the Father. कि यीशु जो परमेश्वर का सिद्ध पाप रहित पुत्र है, वो उसके लिए मरा कि उसका मेल परमेश्वर पिता के साथ कराए. And secondly, और दूसरी बात, God called him to be his ambassador. परमेश्वर ने उसे अपना राजदूत होने के लिए बुलाया. In 2 Corinthians chapter 5 verses 11 to 17, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय के 11 से 17 पदों में Paul gently and lovingly and yet firmly defends himself against his attackers' accusations. पौलुस नम्रता और प्रेम परंतु साथ ही दृढ़ता के साथ उस पर हमला करने वालों के दोषों से अपना बचाव करता है. And then very quickly, in verses 18 to 21, he focuses on the unparalleled privilege that God gave him. और फिर अति शीघ्र 18 से 21 पदों में वो उस बेमिसाल विशेषाधिकार पर ध्यान केंद्रित करता है जो परमेश्वर ने उसे दिया था. But God gave each believer that same privilege too. परंतु परमेश्वर ने हर विश्वासी को भी वही विशेषाधिकार दिया है. Paul did not say, I am an ambassador. पौलुस ने ये नहीं कहा मैं राजदूत हूं. No. नहीं, He said, we are ambassadors. उसने कहा हम राजदूत हैं. God not only redeemed us and saved us eternally, परमेश्वर ने न केवल हमें छुड़ाया और अनंत काल के लिए बचा लिया, God not only reconciled us to himself and adopted us as his heirs, परमेश्वर ने न केवल अपने साथ हमारा मेल किया और हमें अपने वारिस बनाया, he also called us to be ambassadors. उसने हमें राजदूत बुलाने के लिए भी कहा. Whatever your earthly job may be, you can call yourself an ambassador. धरती पर आपका काम चाहे कोई भी हो, आप अपने आप को राजदूत कह सकते हैं. Because you speak for the King of Glory. क्योंकि आप महिमा के राजा की तरफ से बोलते हैं. You act on behalf of the King of Glory. आप महिमा के राजा की तरफ से काम करते हैं. You have the King's authority to proclaim the message of reconciliation to God. आपके पास परमेश्वर से मेल का संदेश सुनाने का राजा का अधिकार है. And when you begin to see your life as an ambassador of Jesus Christ, और जब आप अपने जीवन को यीशु मसीह के राजदूत के रूप में देखना शुरू करते हैं, nothing and no one can depress you for very long time. तो बहुत लंबे समय तक कुछ भी और कोई भी आपको निराश नहीं कर सकता. Just like you, I face discouragements. आप ही की तरह मैं भी निराशा का सामना करता हूं. Just like you, I face pressures. आप ही की तरह मैं भी दबावों का सामना करता हूं. Just like you, I face challenges. आप ही की तरह मैं भी चुनौतियों का सामना करता हूं. And the devil uses these to try to push me down and keep me down. और शैतान प्रयत्न करता है कि इनका इस्तेमाल मुझे नीचे गिराने और गिराए रखने के लिए करे. But the reason that I cannot stay down for too long is the seventh secret of positive living. परंतु इसका कारण कि मैं ज्यादा देर तक नीचे गिरा नहीं रह सकता, वो सकारात्मक जीवन का 7वां रहस्य है. I remind myself of whose power I have. मैं खुद को स्मरण दिलाता हूं कि मेरे पास किसकी शक्ति है. I remind myself of who commissioned me. मैं अपने आप को उसका स्मरण दिलाता हूं जिसने मुझे नियुक्त किया. I remind myself of the privilege that he gave me. मैं अपने आप को उस विशेष अधिकार का स्मरण दिलाता हूं जो उसने मुझे दिया है. I remind myself of the title ambassador. मैं अपने आप को राजदूत की उपाधि का स्मरण दिलाता हूं. I remind myself of who I'm speaking for. मैं खुद को उसका स्मरण दिलाता हूं जिसके लिए मैं बोलता हूं. And then I realize that I may be nothing, but he is everything. और फिर मैं एहसास करता हूं कि मैं चाहे कुछ भी नहीं हूं, परंतु वो सब कुछ है. That will lift you up in a hurry. ये बात आपको तुरंत प्रोत्साहित करेगी. Therefore we are ambassadors for Christ, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं. as though God were making his appeal through us. जैसे कि परमेश्वर हमारे द्वारा ये विनती करता है.
we beg you on behalf of Christ, हम मसीह की तरफ से तुमसे निवेदन करते हैं, be reconciled to God. परमेश्वर से मेल कर लो। What an honor each one of us has. हम सब के लिए क्या ही आदर की बात है, What a privilege each one has been given. क्या ही उत्तम विशेष अधिकार हम में से प्रत्येक को दिया गया है। My listening friend, I'm about to conclude, मेरे श्रोता मित्र, मैं समाप्त करने जा रहा हूं, but I cannot conclude without asking this question. परंतु मैं ये प्रश्न पूछे बिना समाप्त नहीं कर सकता। Someone may be listening today who have never been reconciled to God. शायद आज कोई ऐसा जन हमें सुन रहा होगा जिसने कभी परमेश्वर से मेल नहीं किया है। Some may have resentment toward God. कुछ के हृदय में शायद परमेश्वर के लिए विरोध होगा। Some of you may be angry with God. आप में से कुछ शायद परमेश्वर पर गुस्सा होंगे। My dear friend, God is opening His arms to you right now. मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर इसी समय आपके लिए अपनी बाहें फैला रहा है। He is inviting you to come and be reconciled with Him. वो आपको आमंत्रित कर रहा है कि आप उसके साथ मेल कर लें। He is inviting you to come and surrender to Him, वो आपको आमंत्रित कर रहा है कि आप आकर उसके सामने समर्पण कर दें, to trust Him. उस पर भरोसा करें। He is your cure, वो आपका निवारण है, and He will not only become your Savior and Lord, but also your friend. और वो केवल आपका उद्धारकर्ता और प्रभु ही नहीं बनेगा, परंतु आपका मित्र भी बनेगा। Don't miss this chance. इस अवसर को जाने न दें। If the Holy Spirit speaking to you, यदि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, please pray with me this simple prayer. तो कृपया मेरे साथ मिलकर यह आसान सी प्रार्थना करें। Lord God, I come to you प्रभु परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ to be reconciled with you. आपके साथ मेल करने के लिए। I thank you for Jesus who is making it possible to be reconciled with you. मैं यीशु के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपके साथ इस मेल को संभव कराता है। I receive you into my life. मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन। Until next time, I wish you God's richest blessing. और अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।